بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ پروگرام تاخیر کا شکار ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے چونکہ انٹرنیٹ کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا اور ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمارے کچھ پروگرام تاخیر کا شکار ہوئے۔ تے نال ہی میں ان لوگوں نے بھی دس دیواں جڑا پنجابی پروگرام سن دین، انہوں نے بھی دس دیواں کہ وجہ ہی ہوئی ہے، اور کوئی گل نہیں۔ تے اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اچھا ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جنگ کے لوگوں کو لگتا ہے نا تفریح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں آپ لوگ، اسی طرح مطلب اور کئی علاقوں میں چلے جائیں بڑے شہروں میں، تو وہاں پہ نا پارکس بنائے ہوتے ہیں تاکہ عوام اپنی تفریح کے لیے آئے اور وہاں پہ کچھ وقت سپینڈ کرے، پرفضا ماحول میں آئے۔ لیکن نہ ہی ہمارے لوگوں کو خیال آتا ہے کہ ہم نے کوئی تفریح کرنی ہے۔ وہ ایک کہتا 1.5 مرلے کا ہمارے یہاں پارک بنا ہوا ہے، شفقت شہید اپنا، یہ جو جسے ہم جہاز والا پارک عام طور پہ کہتے ہیں۔ چلے جی 1.5 مرلہ میں نے ویسے کہا ہے، لیکن وہ تھوڑا زیادہ ہوگا، اور اس کے سامنے ایک کمپنی باغ ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ ایک کمپنی باغ کو اس کو درمیان میں شارہ ختم کر کے اس کو اکٹھا کر دینا چاہیے تھا، یا وہ جو شارہ تھی ڈی سی ہاؤس کو بھی تو اپنا پروٹوکول ہے نا سر، ڈی سی صاحب کو بھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کا بھی اپنا ایک پروٹوکول ہے کہ اس کو ختم کر کے وہاں پہ فروٹ اسٹریٹ بنا کے تو ان کو مرج کر دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن بہرحال جی کسی آ کے ہر کوئی مرضی کا مالک ہے، کسی کو جا تھوڑی سکیندا۔ اچھا اب ایک پارک ہمارا شروع کیا، نواز شریف پارک انہوں نے بنایا جناب جنگ سٹی کے بعد۔ پھر جو پچھلے ڈی سی صاحب ہیں، ان سے پچھلے جو ڈی سی صاحب تھے وہ عمیر بھٹی صاحب سے پہلے، تو جی میرے خیال میں ان کا یہی نام تھا، خرم نیازی صاحب، تو وہ انہوں نے جناب دوسرا پارک وہیں پہ شروع کر دیا۔ وہ کوئی 1 ارب کی غالباً لاگت اس کی ہونی تھی، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں، آئے صاحب ابھی آپ سے بات کریں گے۔ ایک اور پارک جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے وہ بنا ہوا ہے جناب چنیوٹ روڈ پہ جا کے، چنیوٹ موڑ کے پاس، چنیوٹ موڑ سے بھی کافی آگے جا کے بنا ہوا ہے، بلکہ صوفی موڑ سے بھی آگے ہے، چراب کالج کے بالکل تھوڑا سا پہلے ہے، جس پہ بہت پیسہ لگایا گیا، بہت انویسٹمنٹ بھی کی، لیکن عوام وہاں نہیں جا سکی۔ اگر ہم فیصل آباد کا ذکر کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو نواز شریف پارک بنایا گیا وہ بالکل چناب چوک کے ساتھ بنا دیا گیا۔ اسی طرح وہاں پہ عوام کی ایکسیس تو ہو نا، یہ چیز ہے۔ دوسرا اب میرے خیال ہے ہماری عوام بھی نا اسی طرح تفریح اور پڑھائی سے دور ہو رہی ہے، جس طرح ضلع کونسل میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی نا، تو وہ لائبریری اٹھا کے انہوں نے وہ نواز شریف پارک پہ ڈال دی، اور عوام بڑی خوش ہے، حتیٰ کہ وہ لائبریری یہاں ہوتی، لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ تو ہم لوگ پڑھنے سے اور تفریح سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس حاج صاحب سے آج بات کریں گے۔ حاج صاحب کیا صورت حال ہے جی؟ ساڈے کول نہ پارک ہے نہ کتاباں ہیں، کسی آخیا کہ وہ ایک ہی گانا ہے، بوئے باریاں اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بات یہ ہے، ہم تو اذان حق کے چینل سے جو پروگرام سے اذان دیتے رہتے ہیں، اگر کوئی نہیں سنتا، کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے۔ بات یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تقریباً 40 سال ہوئے ہیں یہاں اس شہر میں رہتے ہوئے، تو یہ تھوڑی سی خوشی کی بات ہے کہ جہاں دھول اٹھتی تھی وہاں پہ چلو کو پارک بنا دیے گئے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پارکوں کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ چند لوگوں کے اصرار پر یا کوئی آتا ہے افسر، اس کی خواہش پر وہ کہتے ہیں یہاں پارک بنا دو، چند پودے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب حالت یہ ہے کہ پہلے بھی بنتے رہے پارک، میں تو پھر آج آگے بات کرتا ہوں، یہاں سیٹل ٹاؤن میں میری رہائش ہے، تو یہاں پر جتنے بھی پارک ہیں ان کی حالت جو ہے نا وہ صحیح نہیں۔ ایک بریگیڈیئر نصرت شہید پارک ہے نورانی مسجد کے ساتھ، دوسرا ہے یہ گلستان فاطمہ الزہرا، کتنے مقدس نام سے ہے، لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک، یہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا تھا، انہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب یہ ہے کہ بن گئے پارک، 4 دیواری بن گئی، گیٹ بھی لگ گئے، حفاظت کوئی نہیں ہے، اس کے اندر جو پودے لگنے تھے وہ نہیں لگائے گئے۔ اسی طریقے سے یہ اس کی بات میں بعد میں کروں گا، شہر میں مجید امجد پارک ہے، اس کا ہم نے تیا پانچا ایک کر دیا ہے، ڈی سی صاحب کے ان کی رہائش کے سامنے، جہاں پہ کمپنی بہادر کا ایک پرانی عمارت کھڑی ہوتی تھی، جس میں ان کا وہ انہوں نے نہیں مٹائی، اس میں اس کا لگا ہوا تھا کہ یہ کمپنی بہادر نے فلاں سن میں یہ بنائی تھی۔ بھائی اس کو چھوڑو، کمپنی بہادر دفع ہو گئے وہ، اب ہمارا ملک آزاد ہے تو کم از کم جو نئی آپ بلڈنگ بناتے ہیں اس میں کمپنی کو اچھا ہمارا ملک آزاد بھی ہے، کہتے تمہیں آزاد ہے، لیکن نہیں ذہنی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہم آزاد ہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ پرانی بلڈنگ کھڑی رہی، پتہ نہیں اب تو میں عرصہ ہو گیا ادھر کوئی نہیں گیا، وہ شاید گرا دی ہے یا نہیں،
तो वहां पे जम खाना क्लब बना दिया गया। भाई बात यह है कि ये पार्क है, इस पार्क को वुसअत दो, लेडीज वहाँ क्लब बनी हुई है उसको, उसके साथ ये सारा जो है, अब आपने नादरा ऑफिस खत्म कर दिया, नेशनल बैंक जो है वो आपने बिल्डिंग खत्म कर दी, उसमें आम साथ में बना हुआ था ये स्विमिंग पूल, वो आम आदमी के लिए था, उसको उसमें मर्ज कर दिया आपने जम खाना में। तो बात यह है कि ये तो बहुत बड़ा पार्क बनना चाहिए था। अब शहर में जितने भी लोग हैं, औरतें हैं, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ताजर पेशा हैं, दूसरे लोग हैं, वो चाहते हैं शाम को या सुबह के वक्त वहां की तफरीह करें। अब हमने क्या किया है, वहां उसको मखसूस लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया। मजीद अमजद पार्क में मुझे नहीं पता वहां पे क्या है, आजकल बाहर के पौधे शौधे अच्छे लगे हुए हैं, उसकी कुछ हिफाजत भी होती थी। उसमें भी हमने एक मस्जिद बना दी और उसके साथ कोई लैट्रिनों का बना दिया। मुझे पता चला कोई लैट्रिनों को कब्जा और लगा दिया गया है वो ताला, और वहां पे उन्होंने टैक्स लगा दिया। जो भाई जो तफरीह के लिए लोग आते हैं उनसे आप टैक्स लेंगे। साथ में प्रेस क्लब है, उसके साथ जितनी जगह खाली पड़ी है वो सारा उसमें उसकी कोई हिफाजत हो रही है। साथ में किसी जमाने में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी की बिल्डिंग मैंने खुद देखी है, वहां जाके मैं काफी अर्से तक किताबें ऐसा हम पढ़ते रहे, अखबारें पढ़ते रहे वहां पे वो जाके, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग थी। बाद में क्या हुआ, उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया, उसको लाइब्रेरी पार्क का नाम दे दिया गया। लेकिन बिल्डिंग तो मेरे ख्याल में खड़ी है उसी बिल्डिंग में जो नहीं है नहीं ना। नहीं नहीं, अच्छा। लाइब्रेरी पार्क जो है ना, हाँ हाँ। उसमें कोई बिल्डिंग नहीं है। उसमें एक जगह पे उन्होंने जहाज लगा दिया उसका मॉडल, और दूसरी जगह पे कोई बच्चों के लिए वो झूले झूले, वो भी सुना है कि किसी एक बंदे ने ठेका लिया हुआ नहीं है। नहीं, अच्छा ये जो जहाज वाला पार्क जिसे आप कह रहे हैं, यहाँ तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग नहीं होती थी मेरे ख्याल में। ये होती थी बिल्डिंग, अच्छा खूबसूरत बिल्डिंग थी, मैं खुद वहां जाता रहा। अच्छा अच्छा। तो बात यह है कि इसको उन्होंने फिर चारों चारों तरफ ग्रिलें लगा दी, और वो अब वहां पे भी लोग आते जाते हैं, तो लाइब्रेरी पार्क भी बन गया ये भी। लेकिन उनकी प्रॉपर जो है ना वो निगरानी वो नहीं होती। अच्छा, तो ये जहाज वाला पार्क है ना, मुझे तो इससे इख्तलाफ है, मेरी जाती राय है कि मतलब इसको पार्क का नाम देना भी मैं समझता हूँ पार्क की इंसल्ट है, मैं जाती तौर पे। मतलब आप उस जगह को देखें, और सड़कों को तंग कर दिया गया है। मतलब उस जगह को देखें, इससे बेहतर था कि आप उसको वहां पे वैसे ही रहने देते, जो डीसी ऑफिस वाली सड़क है वो खत्म करके उसको परली तरफ मिला देते, तो कौन सा अजाब आ मलिक जाता साहब था। बात ये है, पहले तो जब किसी आखे कि पहले तो लगता है पूरे शहर बनवे होया कि भाई इतने बनवे बड़ा जरूरी है भाई ओनू खत्म कर दे हुआ ते कंपनी बाग नु बधा के ते परला हिस्सा नारा ला के बनाना मलिक चाहते, साहब पता नहीं बात कौन ये है कि प्लान जहाँ करदा इन्हां दा। नौकरशाही का राज है, देख रहे हैं अफसरशाही है। हम्म। अब देखिए डीसी हाउस की जो दीवार है, हम्म। ठीक है दीवार है, उसके साथ इन्होंने फुटपाथ खत्म करके उसके साथ ही पौधे लगा दिए थे, सड़क को और तंग कर दिया था। इसी तरीके से लाइब्रेरी पार्क जो है उसकी जो ग्रिलें लगी उसकी दीवार की तरफ फुटपाथ था खत्म करके वहां पर भी उन्होंने पौधे लगा दिए। साढ़े मुल्क प्रोटोकॉल रोला ना ए बड़ा है सड़क को और तंग भाई, कर डीसी दिया। साहब को तकलीफ हो, बाकी सारी आवाम को जो बाकी मर्जी बाद होता में रहे। जाए लोग। हाँ। अच्छा बात यह है कि ये 2-3 पार्कों की हो गई। अब जो जंग सिटी वाला पार्क है, नवाज शरीफ पार्क, उस पे मैं 2-3 बार गया हूँ, वहां पे लाइब्रेरी भी बनी हुई है। अब देखें सेटल टाउन से तो उस पार्क में कोई भी नहीं जाता। और सर वो उसकी जगह गलत बनाई गई है, बात यह है वो कि पार्क वहां होना ही नहीं चाहिए। उस पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि जंग सिटी में वो जो गंदा नाला है उसके साथ उन्होंने 1 अरब रुपए से नया एक पार्क जो है वो डिजाइन किया हुआ, वो बन रहा है, उसकी शुरू की हुई है, कंस्ट्रक्शन हो रही। मुझे नहीं पता कि 1 अरब रुपए से उसमें क्या करेंगे। बात यह है कि आप ऐसे मंसूबे जब अफसरशाही ने मंसूबा बनाया, इसमें जाहिर है कि कोई मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक। सर जी बात यह है कि जहां जिथे इन्हां दी नीयत होवे ना, मैं तो सीधी गल दसा, जिथे इन्हां दी नीयत होते उथे बड़ा काम होता है। अब इसको हम खुशामद कह लें, इसको हम जो मर्जी कह लें, इसको हम कोई मर्जी नाम दे दें, हम ये कह दें कि मोहसिन नकवी साहब का अपना इन्फ्लुएंस था, जो भी है। अब ये देखें कि जहां इनकी नीयत हो ना, ये हर चीज हो जाती है। आप दजी रोड है ना, मतलब जो लोग जंग को जानते हैं, वहां पे लेबर का एक ऑफिस है और चौक बनता है, जो एक तरफ सुल्तान वाले मोहल्ले की तरफ मुड़ते हैं, और एक साइड थाना सदर है, वो एक छोटा सा चौक बनता है। वहां किसी दौर में पहले पट्टों वाला प्लाट होता था, पता नहीं है कि नहीं। और सामने जो है ना वो पुलिस का दस्तकारी स्कूल भी है। उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है ना दूसरी गली में गालिबन मोहसिन नकवी साहब का एक आबाई घर मौजूद है, रिश्तेदारों का। अच्छा रिश्तेदारों का या जो भी है उनका घर, एक घर मौजूद है। उसके कॉर्नर पे वो कोई 20 मरले जगह होगी, चले हम मान लेते हैं जी, चलो 2 कनाल होगी, मान लिया, वहां पे पार्क बन गया, उस पे भी करोड़ों रुपए लगा है। अच्छा वहां आप पार्क बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मुसीबत है कि भाई ये जो कंपनी बाग है या मजीद अमजद पार्क है, इसको आप बड़ा करके इस पे यहाँ पे झूले क्यों लगाया सारे जैसे। फिर जो कुछ पार्क खवातीन के लिए मखसूस थे, एक खवातीन का पार्क भी था जो इसी मजीद अमजद साहब की बैक साइड पे था, वो भी खत्म कर दिया गया। मतलब आपको एक चीज का पता है कि सिर्फ
वो क्या कहते हैं जंग जिम खाना को बढ़ाना है, ठीक है, जहां दिल करे। ये सर वो है ना कि एक वो मुगल बादशाहों वाला ज़हन कि मेरा यहाँ दिल किया यहाँ बना दे। बात यह है कि जो बादशाह होते हैं ना, उनकी मर्जी होती है। हाँ बल्कि मैं देख रहा हूँ 2-2.5 सालों से तो यहाँ मुल्क में ना कोई कानून है, ना आइन है, ना कोई मुशावरत है। जो जिसका जी चाहता है, जिसके हाथ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। अब बात यह है कि ये पार्कों की बात फिर कर रहे हैं, वो तो हो गया। ये मेरे घर के सामने जो गुलिस्तान फातिमा ज़हरा पार्क है और ये जो नुसरत शहीद ब्रिगेडियर नुसरत शहीद, मेरी इतला के मुताबिक कन्फर्म इतला है, दोनों पर 1 करोड़ और 57 लाख रुपए और दूसरे पे लगा है। हालांकि सिर्फ दीवारों की मुरम्मत हुई है और उनमें 3-4 छतरियां बनी हुई हैं। पता चला है कि 40-40 लाख की छतरी है। भाई खुदा का खौफ करो, और जो उसमें एक पौधा नहीं लगाया गया। अब एक छतरी सामने दे दो। उनमें एक पौधा नहीं। मुझे पता चला था कि ये 60 लाख के पौधे खरीदे गए हैं। वो कल भी मैंने पूछा कि वो कहते जी उधर पड़े हैं। वो भाई साल हो गया, वो डीसी साहब चले गए, उसके बाद आने वाले चले गए। वो पौधे लगाओ यहाँ पर। एक और जो जुल्म है वो ये है कि ये पार्क है सिर्फ लेडीज के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे सारा दिन लड़के आके खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, गाली गलोच होती है और इर्द गिर्द के लोग तंग हैं। ये पार्क है, ये प्ले ग्राउंड नहीं है। तो बात यह है कि खवातीन के लिए है, तो इसकी हिफाजत कौन करेगा? डीसी साहब को चाहिए, डीपीओ साहब को चाहिए यहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। और महकमा जो है जिला बादशाह बंदे हो भाई साहब, तुम भी बादशाह बंदे हो, वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके आवाम मलिक साहब कमाल जिला कौंसल जो है ना, वो यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे एक माली नहीं दे सकते। अब उर्ले पार्क की लाइटें बंद है, 1 महीना हो गया, इसलिए कि यहाँ वो लाइटें जलाने बुझाने वाला नहीं। तो आम डीसी साहब को मिल के भी खावे। अच्छा एक और बात है, अगर आपने पार्क बनाने हैं, इनकी हिफाजत करनी है, तो उनकी निगरान कमेटियां जो बनी हुई हैं उनको एक्टिव करें, या फिर निगरान कमेटियां बनाए इलाके मोहल्ले से। वो एक पार्क बना दिया, मुझे याद आ गया। आप वो जो अपना चनाब पार्क बना हुआ है, मतलब हमारा सूफी मोड़ से आगे। जी हाँ, चनियोड़ रोड पर। चनियोड़ रोड पर यार, अव्वल तो मुझे देखे कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को अपने सेंस से भी कुछ सोचनी चाहिए। भाई आपके पास इतनी बड़ी, अच्छा वहां जिससे मैं बात कर रहा था माजरत के साथ कि डीसी साहबान को भी पता होता है, अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब को भी पता था कि वो मोहसिन नकवी साहब के जो घर के करीब जो भी आबाई घर है, उनके रिश्तेदारों के घर जो भी हमें से कोई ताल्लुक, अच्छी बात है, वहां भी बनना चाहिए, जगह पड़ी हुई थी, बनना चाहिए था। लेकिन अगर उन्हें बनाना ही था तो फिर वो सारा ये भी तो बनाया जा सकता था ना, कोई जैल घर को बना देते, नहीं बनाया। फिर वो गंदे टोए पे जो है अपना थोड़ी सी वो भी डीसी पार्क बन गया था। अच्छा उसको भी नहीं बनाया। अच्छा और जगह भी बता देता हूँ मैं, अभी अब सब्र करें। फिर हमारा जो जिसे हम चर्ची ग्राउंड कहते हैं, जी हाँ, अच्छा सबका वो था कॉम्प्लेक्स था, वहां भी नहीं बनाया। अच्छा यही शक्ल अगर आप दे देते, फर्ज करें आपके पास एक स्टेडियम बन चुका है, अगर आप यही माहिर ग्राउंड को दे देते शक्ल, वो आपके पास जगह भी थी तो आप उसको बना देते, वहां लोगों की आमद रफ्त भी हो सकती थी, साथ माहिर का दरबार भी है। मतलब ये है कि जिसका जो शहनशाही जहन है वो वैसे ही काम करता है। वो मलिक साहब बात यह है कि 2 चीजें होती हैं, एक हर बंदे का अपना विजन होता है, दूसरा मशावरत होती है। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लोग पिछले 2.5-3 सालों में आए हैं, उनका विजन ये था कि दिहाड़ियां लगाओ और चले जाओ। और सर उनका वो दिहाड़ियां लगाते हैं, हमारा अल्लाह माफी दे नाम सबूत नाम बात करते हैं, सुन लेना, सुन ले, मतलब मेरी बात सुने ना। कहने का मकसद है कि चलो उनका होता होगा जो भी शौक है, नहीं है अपना दिल है, विजन है, मशावरत हो सकती है ना। लेकिन असल तो स्यापा है ना कि हमारे जो सियासतदान है, जो हमारे जंग के लोग हैं, वो क्या करते हैं? सियासतदान तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारे जिला जंग के 2-4 बने थे, वो भी पार्टी छोड़ के भाग गए। बात यह है कि जो हैं उनका मैंने तो कभी वो नाम ही नहीं सुना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बात यह है कि सियासतदान अगर किसी काबिल होते तो हमारे जिले की हालत ये ना होती। हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन ऐसे पड़ी हुई और जाया न हो जाती, यहाँ से दानिश स्कूल जो है वो ट्रांसफर न हो जाते। यूनिवर्सिटी जो है उसकी बिल्डिंग का 2 से 1 यूनिवर्सिटी होगी मुबारक हो जी, वो लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी आ गई, उस पे कब्जा कर दिया ना इन्होंने। अब वो जंग यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनी है लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की, और उसी पे कब्जा कर दिया, लोगों को लॉलीपॉप दे दिया कि देखो जी हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बना दी। तो बात यह है अगर दोनों अलग यूनिवर्सिटी होती तो यहाँ पे लोगों को जॉब भी मिलता। चलिए इस पे ऐसा बात करेंगे, बात पार्कों की हो रही थी, तो नाज़रीन बात यह है कि हम आखिरी बात करते हैं और खत्म करते हैं इस बात जी। इसी पे मैं बात करूँ, ये जो 2 पार्क हैं इतने पैसे लगे हैं, क्या मौजूदा डीसी साहब बंडर साहब जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है जरा इस पे पूछें तो सही कि कितने पैसे लगे हैं और कितने मुख्तस हुए थे। फिर कलमा चौक है उसके साथ एक जगह बनी हुई है एफ ब्लॉक के सामने, और कुछ नहीं कर सकते तो इनकी हिफाजत तो करें, 1-2 बंदे तो डिप्यूट कर दें ना, उनको कम अज कम पता होगा कि वक्त पे पानी लगना। फिर ये है कि पार्कों की टाइमिंग होनी चाहिए,
कि ये इतने बजे जो है ना ये बंद होगा, इतने बजे खुलेगा, ये कर दें तो कुछ हिफाजत भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये तो किसी से कभी नहीं, वो हर कोई आता बस ठीक है जी, लोग हैं खुद बखुद। अब दीवारें फैलाते हैं, यहाँ पे इस पार्क की ग्रिलें चोरी कर दी गई हैं, लोग कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, उसको आग लगा देते हैं। तो ये क्या अब हमें तफरीह देंगे? बात यह है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, उसको अगर लड़ाई झगड़े से उधर फुर्सत मिले तो शहरियों की हिफाजत के लिए उनको तफरीह फराम करने के लिए कम अज कम ये पार्क जो है शहरियों को तफरीह फराम करने के लिए अच्छे इकदाम करें, लेकिन इसमें सारी जिम्मेदारी हम कहते हैं ना, कभी कभी हम ये बात करें, यकीन हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सबको करते हैं, डिप्टी कमिश्नर को भी करते हैं, एसपी साहब सबको, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कसूर जो है ना वो जंग के सियासतदानों का भी है और जंग की आवाम का भी है। हमने जंग के सियासतदानों को भी, अंजुमन ताजरान को भी, इन लोगों से बात करते देखा है कि इस वक्त उनके बाद वो कहते हैं ना कि मोदाबाना साहब आवाम का नुमाइंदा ही कोई नहीं है सर। नहीं, नुमाइंदे जो है वो तो खैर सारे जिधर भी हैं उनको छोड़ दें, लेकिन जो नहीं है ना हाई साहब, उन्होंने इलेक्शन तो अगला लड़ना ही है ना मुझसे, सॉरी माजरत के साथ नाम निकल गया, चलो ये मैं वैसे भी एडिट हो जा रहे। अच्छा, मतलब जेड़े बाकी थम बने हैं सियासत दे, मतलब उन्होंने क्या इलेक्शन को नहीं लड़ना, भाई उन्होंने भी तो लड़ना है ना, तो उन्होंने भी आगे आना चाहिए। मतलब सारा कसूर मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर, ठीक है वो अपना जिसके पास अख्तियार होता है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, लेकिन जिसने अख्तियार इस्तेमाल करवाना होता है हमारे यहाँ वो भी खामोश होता है। और हमने ये अक्सर देखा है, माजरत के साथ इंतहाई काबिल एहतराम, चाहे अंजुमन ताजरान है, चाहे सियासतदान है, चाहे हमारे घर की जंग की आवाम है, हमने वहां पे उनको हाथ बांधे खड़े देखा है। मलिक साहब बात यह है कि मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो नौजवान है ना हमारे, जिसको हम यूथ कहते हैं, अब इनके पास अगर कोई उम्मीदवार, कोई सियासतदान आता तो उनको शीशा दिखाएं कि आपने हमारे जिले के लिए क्या किया, फिर देखेंगे उसका क्या रिजल्ट, हमारे शहर के लिए क्या किया, हौसला करें, इसके बाद के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े शहर में हमें तफरीह के मसाइल हैं, यानी कि हम अगर फैमिली को लेकर जाना चाहें तो हमें सबसे पहले रुख फैसलाबाद का करना पड़ता है। तो इस पे सोचे, इस पे बात करें, आखिर क्या वजह है कि जंग की आवाम के लिए तफरीह मफकूद होती जा रही है। मुझे और भाई साहब को इजाजत दें, इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी प्रोग्राम में फिर जंग के एक नए मसले पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।